Hey yo beautiful people, welcome back to the channel. My name is Aslan and this is Curiosity Trade, a channel where we discuss everything trading. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर RSI के बारे में, Relative Strength Index, what are the things you're missing out on and how you are reading RSI wrongly. Stay tuned, watch till the end. Before watching this video, I'd request you to sit in a place with fewer distractions, have a notebook, have a pen so that you can note down the information which is very important. See you guys at the end of the video. RSI is an indicator. Now, people when we talk about indicators in trading, people treat it very differently. बहुत अलग ही treat करते हैं indicators को. Now, since this is my first video on indicators, on an indicator, I want to give a very quick brief about what is an indicator. Okay, what I understand इंडिकेटर का मतलब क्या है, असल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ इंडिकेटर एंड उसका मतलब क्या है. ओके, आई होप यू गाइस कैन रिलेट टू. तो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू अ कार, ओके, द वर्स्ट कार पॉसिबल. ओके, और इमेजिन कीजिए कि यू आर ड्राइविंग दिस कार, हॉरिबल कार यू वांट ड्राइव, आई नो, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, दिस वन कार यू आर ड्राइविंग. ओके, यू आर हियर, स्मार्ट गाय, यू गुड. ओके, यू आर ड्राइविंग दिस कार. नाउ you have one turn over here, either it's right or left turn आया है. You put a indicator saying that you want right indicator on करते हो. तो इसका मतलब क्या है, that इसका मतलब simple है कि you might be turning right. The guy behind you or the cars behind you will easily understand that this car you might, or this guy, let's take any guy, is turning towards the right. Or if you put a left indicator, it's very simple that you might be turning left. Simple. Now और एक एग्जाम्पल दूँ और आसान कर दूँ. ठीक है, अभी लैपटॉप कंसिडर कीजिए. लैपटॉप है. ओके, एक लैपटॉप में आपको नोटिफिकेशन आता है या फ़ोन में आपको इंडिकेशन आता है कि योर बैटरी इज़ लो. उसका मतलब क्या है, that you have to connect a charger. Simple, right? It's just indicating that the battery is low and you have to connect to a charger. इतना ही है मतलब. ओके, इंडिकेटर का मतलब ही इतना है. ठीक है, बट लोग इतना कंफ्यूज कर लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग दे वांट इज सम टेक्निकल थिंग, सम ऑल ऑफ दिस बुलशिट. कॉम्प्लेक्स बहुत कर लेते हैं लोग. Try to keep things very simple as possible. Okay, now with that said and done, what does there are n number of indicators. Okay, chalo, we will go into the video and we'll see. We are here into the charts. Now how can I put this indicator जो है उसे हम लोग मार्केट में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में हम लोग कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं. how does that help us in the market. Let's bring it to the charts and let's see. Now consider there's one indicator, n number of indicators, they're lagging, leading indicators. उन सब में नहीं जाना है. Today's topic is RSI, so हम लोग RSI के बारे में डिस्कस करेंगे. Now overall indicator जो होता है ये बताता है कि there are different indicators. For example, there are like moving averages, MACD, RSI, VWAP, pivot points, Bollinger Band. You name it guys, you will have n number of indicators. If I go on to indicator session, यहाँ पे है TradingView. It is the best charting websites or charting software, so you have to use this only. I'm not sure but I prefer this thing. So यहाँ पे अगर आप built-ins पर चले जाओगे, you will find अगर यहाँ पे there are n number. Okay, बहुत सारे indicators हैं. ठीक है, but you don't have to completely rely on this thing. Okay, it is just an indication about the market. मार्केट को आपको खुद ही से समझना पड़ेगा. इंडिकेटर क्या करता है, इट ट्राइज टू मेक थिंग्स सिंपल. ओके, जस्ट लाइक अ कार गोइंग राइट. इंडिकेटर का मतलब क्या है, दैट इट माइट टेक राइट. ओके, इसका मतलब अब लोग क्या करते हैं, अभी एक इंडिकेटर व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. ओके, अभी हम लोग एक एग्जांपल दिया था जो कार का. ओके, उसमें राइट इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इट इज़ वेरी सिंपल दैट the car might be turning right
और अगर लेफ़्ट का मतलब है लेफ़्ट, इसका मतलब ये नहीं होएगा कि राइट इंडिकेटर डाला है तो यू टर्न ले रहा है, आगे जाके मार देगा गाड़ी को, या पीछे रिवर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता। राइट इंडिकेटर का मतलब होता है शायद राइट लेगा। उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करते कि ऑन द रोड कि राइट इंडिकेटर डाला है कहीं पे जाके मार देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, व्हाई डू यू कॉम्प्लिकेट थिंग्स सो मच? Okay, why do you complicate it so to such an extent that overthinking, over analyzing stuff also kills trade? Okay, just remember that जितना सिंपल रखोगे ट्रेडिंग उतना बेटर है, उतना प्रॉफिटेबल आप रखोगे। ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। लेट्स गो इनटू द वीडियो। अब यहाँ से एक्चुअल थिंग विल स्टार्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट RSI. Now, what is RSI? If I tell you what is RSI, how do you put an indicator? First off, यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर पे, विल टाइप RSI, बिल्ट इन्स पे आपको मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, प्रेस कर लिए, here we have RSI. सिंपल। नाउ अभी समझते हैं what is RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इन स्टॉक मार्केट आई हैव लर्नड वन थिंग, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक टर्म जो होता है ना, अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, नाम में ही बता रहा है। स्ट्रेंथ का सिनोनिम्स क्या होता है, वेलोसिटी, मोमेंटम, स्पीड, ये होता है स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये क्या इंडिकेट करता है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से यहाँ पे पॉज कीजिए, फिर से ये इतना पार्ट देखिए, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये स्ट्रेंथ का स्पीडोमीटर है, ओके। स्ट्रेंथ का मीटर है, स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है किसकी, मार्केट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू टेल यू नाउ, इफ़ यू गो, अभी एक बाइक में स्पीडोमीटर कैसा होता है, स्पीडोमीटर होता है हियर यू हैव 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड टिल 100 और सो ऑन, 200 भी होते हैं, सुपर बाइक्स एंड एवरीथिंग, ओके। तो ये क्या कर रहा है, व्हेन इट इज़ जस्ट स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एट व्हाट स्पीड द बाइक इज़ मूविंग और द कार इज़ मूविंग और द व्हीकल इज़ मूविंग, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको मार्केट में कैसे हम लोग ये करेंगे, हियर वी हैव वन सिंपल एग्जांपल। अभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। इफ़ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट, लेट मी शो, लेट्स गो ऑन टू द इंडिकेटर। यहाँ पे आ गया आपका इंडिकेटर, राइट। इधर है आपका RSI इंडिकेटर। ना इफ़ आई एक्सपैंड दिस वन, ठीक है, यहाँ पे है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें भी क्या है, वेरी सिंपल, यहाँ पे है भी है स्पीड कहाँ से है, 0 to 100, ऑलराइट, 0 to 100 है स्पीड, वेरी सिंपल। जैसे बाइक्स में ऐसे राउंड में आता है, यहाँ पे कैसे है, इधर हमें स्पीड इधर बता रहे हैं, राइट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके। तो what is it showing? The speed of the market, at what speed the market is going, समझ रहे हो, वेरी सिंपल। क्या किस स्पीड में मार्केट मूव कर रहा है, इतना ही बताता है ये। आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, मिड लाइन, डबल बॉटम, डबल दिस, ये वगैरह वगैरह, दिस आर नथिंग। ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझिए, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट की स्पीड। नाउ इफ़ आई ड्रॉ वन लाइन, 50 को हम लोग न्यूट्रल समझते हैं, ठीक है, 50 को न्यूट्रल समझते हैं। ये मेरी टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो मैनी ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वोंट अग्री विथ मी, बट आसानी के लिए यही बेहतर तरीका है, ठीक है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, जस्ट गो ऑन विद इट, यू विल डेफिनेटली हैव सक्सेस, ओके। और एक बात आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये वीडियो जो है ना, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू नो more about RSI also, just sit here with the thing to learn,
ओके यहाँ पे बैठने के सीखने के इरादे से बैठिए. डोंट सिट विद थिंक कि व्हाट इज़ ही गोना टीच मी. डोंट सिट हियर फुल बकेट में कितना भी पानी डालो बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा. ठीक है, सिट विद द एम्प्टी बकेट, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे 50 मतलब न्यूट्रल. ओके इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसको हम कर लेते हैं 50 के अबव इज स्पीड है. ठीक है, 50 के अबव स्पीड, 50 के बिलो क्या है, स्लो. ऑलराइट, सिंपल. इतना ही समझना है आपको RSI में. समझ गए? नाउ इट्स क्लियर. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन द मार्केट, इफ़ आई हैव टू शो यू, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके यहाँ पे आपको रीडिंग बता रही है, राइट. व्हाट इज़ इट टेलिंग यू? द स्पीड ऑफ द मार्केट. एज आई मूव द कर्सर इट इज़ शोइंग दैट द मार्केट की स्पीड कितनी है, क्या है, वगैरह वगैरह, राइट. अभी आप लोग क्या करते हो, हाउ पीपल ट्रेड इज दे कंसिडर दिस टू बी ओवरबॉट and they consider this to be oversold, right. This is how a new इतना ऐसा ही सोर्स आपका, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है यूट्यूब पे, कहीं भी कोई भी कोर्स में, कि ओवरसोल्ड जब भी इस जोन पे आ जाए तो सेल कर दो, इस जोन पे आ जाए तो बाई कर लो. ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग. ओके वर्क करता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये कम्प्लीटली इट्स नॉट बट देर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, तो इस वजह से हम लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ. लेट्स गेट इन टू द वीडियो. आप लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल ओवर हियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द मार्केट इज़ ओवर हियर एट दिस प्राइस. ओके तो अगर हम लोग RSI पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन पे ही कम्प्लीटली रिलाई करें तो हाउ थिंग्स विल वर्क. सो दिस इज़ द रिलायंस स्टॉक एंड वी कैन सी द मार्केट इज़ मेकिंग अ मूव. यहाँ पे मार्केट आ गया ओवर सोल्ड जोन पे, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई बाई? या ऑब्वियसली आई शुड बी थिंकिंग टू बाई. ओके स्टॉप लॉस रख लीजिए. ओके प्रॉफिट कहीं पे भी. इफ़ आई प्लान टू बाई एट दिस प्राइस, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, विल सी. देख सकते हो कि द मार्केट यहाँ पे थोड़ा ये किया, फिर द मार्केट कंटिन्यू गोइंग डाउन, गोइंग अप, फिर से वापस आया. यू कैन सी द मार्केट eventually it gave us a drop. तो ये क्यों हर बार वर्क नहीं करता? दैट इज़ द प्रॉब्लम. इफ इट इज़ रियली राइट, इफ द ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन इज़ रियली राइट, हर बार वर्क करना चाहिए, राइट. सो विद दैट सेट एंड डन, आई एम हियर विद अ न्यू दिस थिंग. ओके नॉट अ न्यू थिंग, द राइट वे टू यूज़ द पर्पस. आपको अब तक इस वीडियो में तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इंडिकेशन द मार्केट इज. नाउ हाउ डू यू यूज़ RSI effectively? ओके सो RSI को सही तरीके से कैसे यूज़ करें? दैट इज़ वेरी सिंपल. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, you go on indicator RSI टाइप करेंगे तो you'll find this thing and you will get one similar to this RSI. People have known this thing, okay, people know this for sure. फिर if you go on this one, double click or hover around over there, you will find settings option. तो अगर उस पर क्लिक करेंगे तो you will find everything which is at a default. Okay, now what I am interested in is the middle band. Okay, I'm not interested in upper band or the lower band. Okay, but people are used to keeping that thing, will keep it. Okay, हम लोग रख लेते हैं upper band, lower band. Let's reduce it to 60. Okay, just for reference. Okay, nothing more than that. We're not using it. थोड़ा let's keep it dark. Let's थोड़ा ये कर thicken कर देते हैं and voila, we are good. Okay, so now how do we use this thing? Okay, how do we use this? Very simple. Whenever the market, okay, जब भी मार्केट 50 लाइन के ऊपर है तो उसका मतलब क्या है? एज वी नो द स्पीडोमीटर, हम लोग इस वीडियो में ही प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड. ओके स्पीडोमीटर, तो मार्केट क्या है, मार्केट की स्पीड कैसी है? इज इट स्पीड और इज इट स्लो? मोमेंटम कैसा है मार्केट का? इट इज़ स्पीड. अबव 50 इज स्पीड में है मार्केट. ओके तो व्हाट इज़ द थिंग, द मार्केट विल go up. Okay, we are not
considering overbought, oversold or anything in this thing. Okay, तो with that thing जब भी market has dropped below 50 के नीचे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी 50 के नीचे आ गया market, तो what is the market? The market is slow and the market is supposed to go down. Okay, momentum बता रहा है market का, market momentum, it is showing just the momentum. Okay, RSI should be used as a momentum indicator. Okay, it shows the strength of the momentum, not anything overbought, oversold or anything for that. Okay, now let's go on intraday and let's see how things will work. Let's choose some other stock. Let's go for okay, LNT देखते हैं हम लोग. Okay, now यहाँ पे हम लोग we have one good example over here only. Okay, यहाँ पे क्या था market over here, market was uptrending. Okay, above 50 था तो it was up. Okay, यहाँ पे clearly कितना अच्छा example है, above 50 है तो market is still in a uptrend. Okay, momentum upwards ही है. Okay, once the market dropped, okay, once the market dropped over here, यहाँ पे आप देख सकते हो कि the market dropped. Okay, it tried going up over here, then again very beautifully the market has taken, यहाँ पे आप देख सकते हो the market has taken resistance at the 50. Okay, at the 50 level. After that the market has immediately dropped. One second, let me just और थोड़ा इसे dark कर दूँ तो you might find. Okay, let me, okay, now it is better I guess. 50. Okay, इसको हम लोग, okay, sorry, one second. Yeah, let that be there. Okay, इसको हम लोग red कर देते हैं so that you guys can see. Okay, 50 के जैसे नीचे आ रहा है तो what we should think to sell. Okay, whenever the market is below, what is the strength, what is it indicating first off? Okay, ये indicate क्या कर रहा है? The market is slow and the market might be पीछे की ओर जा रहा है. Okay, here you guys can see वैसे ही हुआ है, मार्केट वेंट अप, डाउन ट्रेंड चल रहा है. जब भी मार्केट 50 के बिलो है तो मार्केट इज फॉलिंग डाउन. राइट नाउ वंस द मार्केट ट्राइड गोइंग अप देन इमीडिएटली इट केम डाउन. राइट, फिर देखते हैं हम लोग जब मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप एंड अप, हियर यू गाइस कैन सी जब 50 के ऊपर आ गया मार्केट तो मार्केट इज गॉन अप. ओके, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, द मोमेंटम हैज टर्न्ड अपसाइड. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. इसको आप बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट ऑन एन नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा. यहाँ पे अगेन वी गॉट वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, यू गाइज कैन सी यहाँ पे मार्केट 50 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया है, फिर इट गेव अ ड्रॉप एंड यू गाइज कैन सी अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रॉप. ओके, इंडिकेटर को सही तरीके से उसका एक्चुअल पर्पस को समझ के यूज़ कीजिए, ना कि कोई एक यूट्यूबर कुछ भी बोल रहा है या कोई भी कहीं से भी सीख रहे हो. आई एम नॉट कोई भी इन्फॉर्मेशन को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट all I'm trying to tell you is you are mature enough when you are trading, when you're risking your capital, try to, before investing your money, invest some time to learn about what you are using, what oscillator it is, what is RSI. There are n number of things which we are gonna cover. Okay, इसको back test कीजिए आप and you will definitely find this video very useful and this indicator very beneficial. Okay, if you mix and match all of this thing with the other price action के साथ, अगर आप mix and match करोगे with other moving averages, आप अगर इसको ये करोगे तो you will definitely make consistent profits and consistent this thing. Okay, alright, that's it for this video. Thank you for watching. I hope this added some value. Definitely drop a like, comment on this video if you have any doubts, and just a word of appreciation would be very helpful to encourage me to keep on making new videos for you. Apart from that, do subscribe to the channel, share it with your friends, and that's it. I'll be back with another video. Until then, peace.